નમસ્કાર. સત્કેવલ વિદ્યા મંદિર પરમગુરુ પાઠશાલા સંકુલમાં હું વાઘેલા રોહિણી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ઓનલાઈન શિક્ષણ પદ્ધતિમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 1 હિન્દી વિષયમાં અભ્યાસ કરીશું. હિન્દી વિષયમાં યુનિટ નંબર 1 વર્ણમાલા. ટોપિક્સ કવર મૂળાક્ષર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વર્ણમાલા યા મૂળાક્ષર શીખીશું, તો આપ સૌ ધ્યાન આપશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વર્ણમાલા યા મૂળાક્ષરો. સૌથી પહેલાં આપણે સ્વર શું છે તે સમજીશું. સ્વર કોને કહે છે અને કયા કયા છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સ્વર આપેલા છે: અ, આ, ઈ, ઉ, ઋ, એ, ઓ, ઔ, અમ અને અહ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સ્વર છે. સ્વર એટલે શું? તો સ્વર એટલે જે પણ શબ્દ બોલીએ છીએ, જે પણ અક્ષર બોલીએ છીએ, તેમાં કોઈ પણ ભાર આપ્યા વગર બોલી શકીએ છીએ, તેને સ્વર કહે છે. તેમાં કોઈ પણ વ્યંજનનો ઉપયોગ થતો નથી અને સ્વર આપણે સરળતાથી બોલી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેની નીચે વ્યંજન આપેલા છે. વ્યંજન એટલે કે સ્વર અને અક્ષરો એટલે કે ક, ખ, ગ એની સાથે સ્વર જોડાયેલા હોય છે, તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેથી તેને વ્યંજન કહે છે. વ્યંજન બોલતી વખતે તેમાં સ્વરની સહાયતા કરીએ છીએ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યંજન પણ બોલીશું કે વ્યંજન કોને કહે છે. તો ક, ખ, ગ, ઘ અને તેની બાજુમાં એટલે કે અનુસ્વાર કહે છે. ચ, છ, જ, ઝ બાજુમાં રકાર મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે આ ચિહ્ન વપરાય છે, તેને ય કહે છે. ટ, ઠ, ડ, ઢ, અણ, ત, થ, દ, ઢ, ન, પ, ફ, બ, ભ, મ, ય, ર, લ, વ, શ, શ, સ, હ, ક્ષ, જ્ઞ અને ત્ર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કથી ત્ર સુધી વ્યંજન આપેલા છે. સૌથી પહેલાં જે અક્ષરો આપેલા છે તે હિન્દીમાં છે અને તેની બાજુમાં ગુજરાતી લખેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યંજન છે. તો ચાલો આગળ વધીએ. અહીંયા પઢો ઓર લીખો, વાંચો અને લખો. અહીંયા ફૂલ છે, જેને કમલ કહે છે, કમલ કા ક. તેની બાજુમાં અક્ષર આપેલ છે ક અને તેની બાજુમાં કમલ. તેની નીચે ક ડોટ વડે છે અને મલ લખેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ કને આપણે પેન્સિલ વડે ડોટ પૂર્ણ કરીશું, જેથી પૂર્ણ કમલ લખાઈ જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેની નીચે ક ઢૂંઢકર ઉસ પર વર્તુળ બનાવો. ક સુધી તેના પર વર્તુળ બનાવો. તો નીચે અક્ષરો આપેલા છે, તેમાં જેટલા પણ ક જોઈ શકાય છે તેના પર વર્તુળ કરો. અહીંયા તેની નીચે પઢો યા કે વાંચો. કમલ કા ક. રંગ ભરો યા કે રંગ પૂર્ણ કરો. અહીંયા ક કમલ કા ક
दिया गया है उसमें आपको अच्छा रंग पूरना है और इसके पास બિંદુઓ को મિલાવો. ટપકાને જોડો. અહીંયા ટપકા આપેલા છે તો ટપકાને પેન્સિલ વડે જોઈન્ટ કરવાના છે જેથી પૂર્ણ ક બની જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પઢો ઓર લીખો એટલે કે વાંચો અને લખો. અહીંયા ક कमल का क दिया गया है, उसके पास डॉट से क कमल का क दिया गया है, उसको पेंसिल से पूर्ण करके पूरा क लिखना है और जो पूरी खाली जगह दी है उसमें पूरा क लिखना है. क कमल का क. बच्चों, यहाँ क को क से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो या कि क ने क થી શરૂ થતા चित्रों સાથે जोड़ो. बच्चों, यहाँ वर्तुड़ में कई सारे चित्र दिए गए हैं. क कमल का क भी दिया गया है. उसमें जितने भी चित्र क अक्षर से शुरू होते हैं उस पे वर्तुड़ करना है. क कमल का क कंधी का क कछुआ का क. वैसे जितने भी क से शुरू होने वाले शब्द हैं उस पे वर्तुड़ करना है और उसके पास में क के नीचे रेखा खींचो या कि क ने नीचे લીટી દોરો. यहाँ शब्द दिए गए हैं नाक. विद्यार्थी मित्रों, नाक तो क है उसके नीचे रेखा દોરો. ઢોલક તો છેલ્લે ક છે તો ક ની નીચે रेखा દોરો. बकरी तो बीच में क है उसके नीचे रेखा દોરો. कमर क के नीचे रेखा દોરો. सड़क सड़क लास्ट में क है उसके नीचे લીટી દોરો. कल तो क के नीचे લીટી દોરો. बच्चों, क से अलग वर्ण पर ચોકડી કરો. ક થી જુદા પડતા જે અક્ષર છે તેના પર ચોકડી करो. यहाँ क कितने हैं उसके सिवा जितने भी अक्षर हैं उस पे चौकड़ी करना है या कि र, व, त, च, ख, ब, ख અને भ इस अक्षरों पे चौकड़ी करना. पढ़ो और लिखो. बच्चों, यहाँ सबसे पहले कबूतर का चित्र दिया गया है. कबूतर और इसके नीचे अक्षर जो अक्षर दिए हैं क कबूतर का क वो डॉट से दिया है. उसको पेंसिल से पूर्ण करो और कबूतर लिखो और इसके नीचे कबूतर पूरा क लिख के कबूतर शब्द पूर्ण करो. पास में कलश कलश दिया गया है और उसके नीचे का शब्द अधूरा है जो डॉट से क लिखा है. बच्चों, पेंसिल से डॉट पूर्ण करो और कलश लिखो. नीचे का अक्षर में कोई डॉट भी नहीं है और क भी नहीं है तो पूरा क लिख के कलश लिखो. उसके पास कलम कलम दी गई है और उसके नीचे क डॉट से लिखा गया है. उस डॉट को पूर्ण करो और पूरा कलम लिखो. इसके नीचे पूरा क लिखो और कलम पूर्ण करो. बच्चों, पास में कछुआ कछुआ दिया गया है. इसके नीचे क डॉट से दिया गया है. क को पेंसिल से पूर्ण करो और कछुआ शब्द बनाओ. उसके नीचे पूरा क लिख के कछुआ शब्द बनाओ.
इसके नीचे शब्द में से क ढूंढकर उस पर वर्तुळ बनाओ। शब्दમાંથી क શોધી તેના પર વર્તુળ बनाओ। बच्चों, यहाँ उदाहरण दिया गया है। क द म, सबसे पहला अक्षर क है। पास में क र ण, तो पहला अक्षर क है, उस पे वर्तुळ करो। ब क री, तो बीच वाला अक्षर है वो क है, उस पे वर्तुळ करो। म ह क, जो लास्ट वाला अक्षर है वो क है, उस पे वर्तुळ करो। बच्चों, ये क कमल का क है, वो पूर्ण हुआ। यहाँ ख खरगोश का ख। बच्चों, पढ़ो और लिखो, या कि वाँचो અને લખो। बच्चों, ये खरगोश का ख है। यहाँ ख लिखा गया है और उसके पास खरगोश भी लिखा गया है, खरगोश। इसके नीचे जो शब्द लिखा है उसमें ख डॉट से लिखा है, उसको पूर्ण करना है। बच्चों, पेंसिल से ये ख पूर्ण करो और खरगोश लिखो। ख ढूंढकर उस पर वर्तुळ बनाओ, या कि ख शोधी तेना ऊपर वर्तुळ बनाओ। बच्चों, यहाँ कई सारे अक्षर बताए गए हैं, उसमें ख कितने हैं, जितने भी ख दिखाई देते हैं उस पे वर्तुळ करो। यहाँ पढ़ो, ख खरगोश का ख। पास में रंग भरो, जो ख दिया गया है उसमें अच्छा रंग पूर्ण करना है। और उसके पास बिंदु से ख लिखा गया है, बिंदुओं को मिलाओ। बच्चों, पेंसिल से इस ख को बिंदुओं से पूर्ण करो और ख बनाओ। नीचे पढ़ो और लिखो, वाँचो અને લખો। बच्चों, यहाँ ख खरगोश का ख लिखा गया है, डॉट से भी लिखा गया है, तो इस डॉट को पूर्ण करो और ख खरगोश का ख अच्छे से लिखो। और जो खाली जगह दी गई है उसमें पूरा ख लिखना है। बच्चों, यहाँ ख को ख से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, या कि ख ने ख થી શરૂ થતા चित्रों સાથે जोड़ो। बच्चों, यहाँ एक चित्र है खरगोश, उसके पहले का अक्षर ख से शुरू होता है, इसलिए उस पे वर्तुळ करो। और अन्य भी चित्र दिए गए हैं जो ख से शुरू होते हो, तो उस पे वर्तुळ करना। पास में ख के नीचे रेखा खींचो, ख ने नीचे લીટી દોરો। बच्चों, यहाँ शब्द लिखे गए हैं ब त ख, तो लास्ट में ख है, उसके नीचे रेखा दौरो। पास में ओखली, ओखली, बीच में जो अक्षर है वो ख है, इसके नीचे भी रेखा दौरो। चखना, चखना, तो बीच में ख है, उसके नीचे લીટી दौरो। खटिया, खटिया, जो पहला अक्षर है वो ख है, उसके नीचे रेखा खींचो। ख त, तो पहला अक्षर ख है, उसके नीचे रेखा खींचो। लिखना, जो बीच वाला अक्षर है वो ख है, उसके नीचे લીટી खींचो। बच्चों, इसके नीचे ख से अलग वर्ण पर चौकड़ी करो, तो ख થી जुदा अक्षर पर चौकड़ी करो। यहाँ कई सारे अक्षर दिए गए हैं बच्चों। यहाँ र, य, क, ग, च, ब,
व, र અને ग ये अक्षर अलग है, उस पे चौकड़ी करनी है। पढ़ो और लिखो। बच्चों यहाँ शब्द लिखे गए हैं। खटिया, यहाँ उसके नीचे जो ख लिखा है वो डॉट से लिखा है, उस डॉट को पेंसिल से पूर्ण करना है और खटिया लिखना है। उसके नीचे खटिया पूरा लिखना है। पास में खरजुबा, इसके नीचे ख को डॉट से लिखा है, उस डॉट को पूर्ण करो और खरबूजा लिखना है। इसके नीचे पूर्ण खरबूजा लिखना है। पास में खरल, नीचे डॉट से ख लिखा है और इस डॉट को पेंसिल से पूर्ण करो और खरल लिखो। और इसके नीचे पूरा ख लिख के खरल लिखना है। पास में ख ल, ख त। बच्चों उसके नीचे ख डॉट से लिखा है, इस डॉट को पेंसिल से पूर्ण करो और ख त लिखो और नीचे पूर्ण खत लिखना है। बच्चों इसके नीचे शब्द में से ख ढूंढकर उस पर वर्तुळ बनाओ। शब्दમાંથી ख શોધી તેના ઉપર वर्तुळ बनाओ। बच्चों यहाँ उदाहरण दिया गया है। खजाना, पहला अक्षर ख है, उस पे वर्तुळ किया है। दूसरा शब्द ख त, तो पहला अक्षर है वो ख है, उस पे वर्तुळ करो। और तीसरा लिखना, जो बीच वाला अक्षर है वो ख है, उस पे वर्तुळ करो। और चौथा खबर, पहला अक्षर ख है, उस पे वर्तुळ करो। बच्चों यहाँ पढ़ो और लिखो, या कि वाँचो अने लखो। ग गमला का ग दिया है, उससे भी ग म ला, उसके नीचे डॉट से लिखा गया है ग, उससे पेंसिल से जोड़कर पूरा ग लिखना है। ग म ला, या कि कुंडू। उसके नीचे ग ढूंढकर उस पर वर्तुळ बनाओ, या कि घ शोधी तेना पर वर्तुळ बनाओ। और उसके नीचे पढ़ो, ग गमला का ग, उसके पास में रंग भरो, या कि ग दिया गया है उसमें रंग पूर्ण करना है। बिंदुओं को मिलाओ, ये ग बिंदुओं से बना है, उसको पेंसिल से ग बनाना है और ग गमला का ग बनाना है। पढ़ो और लिखो। बच्चों यहाँ ग गमला का ग दिया गया है और उसके पास डॉट से घ लिखा है, उसको पेंसिल से पूर्ण करना है। और दूसरी जो खाली जगह है उसमें पूरा गमला का ग लिखना है। यहाँ ग को ग से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, या कि घ ने ग થી શરૂ થતા चित्रों સાથે जोड़ो। ग गमला का ग। बच्चों यहाँ जो भी शब्द है वो ग से शुरू होने वाले शब्द है, उस पे वर्तुळ करना। और पास में ग के नीचे रेखा खींचो। यहाँ शब्द दिए गए हैं, जितने भी ग है उसके नीचे रेखा खींचनी है। ग ने श, तो पहला अक्षर ग है, उस ग के नीचे रेखा खींचो। न ग र, बीच वाला अक्षर है वो ग है, उसके नीचे रेखा खींचो। उसके पास गहना, तो पहला अक्षर ग है, इसके नीचे रेखा खींचो। और यहाँ पतंग, छेल्ला अक्षर ग है, उसके नीचे रेखा खींचो। पास में गजरा, पहला अक्षर ग है, इसके नीचे रेखा खींचो।
तीसरा भगत, तो बीच वाला अक्षर है वो ग है, तो उसके नीचे रेखा खींचो। उसके नीचे ग से अलग वर्ण पर चौकड़ी करो, तो ग थी जुदा अक्षर पर चौकड़ी करो। यहाँ कई सारे अक्षर दिए गए हैं, उसमें ग से अलग होते हैं, उस पे चौकड़ी करना है। जैसे कि र, म, न, भ, क, ख, फ, प અને श, इस अक्षरों पे आपको चौकड़ी करना है। पढ़ो और लिखो। आगे हम सीख गए हैं वैसे ही गजरा, उसके नीचे डॉट से ग लिखा है, उसको पेंसिल से पूर्ण करना है और गजरा लिखना है। उसके नीचे पूरा ग लिख के गजरा पूर्ण करना है। पास में गणपति, तो उसके नीचे ग डॉट से है, तो उस डॉट को पेंसिल से पूर्ण करो और गणपति लिखो। नीचे पूरा ग लिख के गणपति पूर्ण करो। पास में गधा, तो नीचे डॉट से ग लिखा है, उस डॉट को जॉइंट करो और गधा लिखो। इसके नीचे पूरा ग लिखना है, गधा। और पास में गन्ना, उसके नीचे ग डॉट से लिखा है, तो गन्ना। बच्चों, इसके नीचे शब्द में से ग ढूंढकर उस पर वर्तुळ बनाओ, या कि शब्दમાંથી ग शोधी तेना पर वर्तुळ बनाओ। गठरी, पहला अक्षर ग है, उस पे उदाहरण दिया गया है, ग पे वर्तुळ किया है। वैसे ही पास में न ग र, बीच वाला अक्षर है वो गमला का ग है, तो उस पे वर्तुळ दौड़ो। तीसरा जगना, बीच वाला अक्षर ग है, उस पे वर्तुळ करो। बरगद, तो तीसरा अक्षर है वो ग है, उस पे वर्तुळ करो। बच्चों, ये घ घर का ग है, यहाँ घ डॉट से है, उससे पूर्ण करना है। और यहाँ घ ढूंढकर उस पर वर्तुळ बनाओ, घ शोधी तेना पर वर्तुळ बनाओ। तो घ छ, यहाँ जितने भी घ है उस पे वर्तुळ करना है। इसके नीचे पढ़ो, घ घर का घ। बाद में रंग पूरो और तीसरा है, उसमें डॉट को पेंसिल से पूर्ण करो। इसके नीचे पढ़ो और लिखो, घ घर का घ, और पास में डॉट से घ घर का घ लिखा गया है। इस डॉट को आपको पेंसिल से पूर्ण करना है। फिर जो खाली जगह दी गई है उसमें पूरा घर का घ लिखना है। बच्चों, यहाँ घ को घ से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, या कि घने घ થી શરૂ થતા चित्रों સાથે जोड़ो। यहाँ कई सारे चित्र दिए गए हैं, उसमें घ से शुरू होने वाले शब्द को वर्तुळ करना है, या कि जोड़ना भी है। तो बच्चों, यहाँ पास में घ के नीचे रेखा खींचो। बच्चों, यहाँ कई सारे शब्द लिखे गए हैं, जैसे कि घटना, तो पहला अक्षर घ है, उसके नीचे रेखा खींचो। बाद में बाग, तो दूसरा अक्षर घ है, इसके नीचे रेखा खींचो। घ र, तो पहला अक्षर घ है, उसके नीचे रेखा खींचो। घड़ी, तो पहला अक्षर घ है, इसके नीचे रेखा खींचो। घड़ा, तो पहला अक्षर घ है, तो इसके नीचे रेखा खींचो। घड़ियाल, तो पहला अक्षर घ है, इसके नीचे रेखा खींचो। वैसे घ से अलग वर्ण पर चौकड़ी करो, या कि घ थी जुदा अक्षर पर चौकड़ी करो। यहाँ जितने भी घ से अलग शब्द है, जैसे कि म, छ, भ, क, ख, ग, त અને च, इस अक्षरों पे चौकड़ी करना है। पढ़ो और लिखो। यहाँ पढ़ना है, तो चित्र दिए गए हैं उसको पहचानना भी है। घड़ा,
इसके नीचे डॉट से घ लिखा है, इसमें उस डॉट को पेंसिल से पूर्ण करना है और घड़ा लिखना है। इसके नीचे पूरा घ लिख के घड़ा लिखना है। दूसरा, घड़ी और नीचे डॉट से घ लिखा है, उस घ को पूर्ण करो और घड़ी, इसके नीचे घड़ी लिखना है। उसके पास घोड़ा, बच्चों यहाँ डॉट से घ लिखा है, उसको पेंसिल से पूर्ण करो और घोड़ा लिखो। उसके नीचे पूरा घ लिख के घोड़ा लिखो। यहाँ घर, बच्चों यहाँ घर लिखा है, तो डॉट पूर्ण करो। शब्द में से घर ढूंढकर उस पर वर्तुल बनाओ। बच्चों यहाँ जितने भी घ दिखाई देते हैं उस पे वर्तुल बनाना है। जैसे कि घबराना, तो पहला अक्षर घ है, उस पे वर्तुल किया है। दूसरा बाघ, तो दूसरे वाला घ है, उस पे वर्तुल बनाओ। डाकर, तो तीसरा अक्षर घ है, उस पे वर्तुल लिखो। घटना, पहला अक्षर घ है, तो उस पे वर्तुल करो। बच्चों आगे यहाँ चरखा का च, उसमें भी वैसा है चरखा, तो डॉट से दिए गए जिस अक्षर है उसको पेंसिल से पूर्ण करना है और यहाँ च ढूंढकर उस पर वर्तुल बनाओ। इसमें जितने भी च है उस पे वर्तुल करना है और यहाँ पढ़ो चरखा का च और पास में रंग पूरना है। और तीसरा, बिंदुओं को मिलाओ, जितने बिंदु है उसको पेंसिल से मिलाना है और चरखा का च बनाना है। उसके नीचे पढ़ो और लिखो चरखा का च। पास में च डॉट से दिए गए हैं, उस डॉट को मिला दो और चरखा का च बनाओ और जो खाली जगह दी गई है उसमें पूरा च लिखना है। बच्चों यहाँ च से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। बच्चों यहाँ चित्र दिए गए हैं, तो च से शुरू होने वाले जितने भी चित्र है उससे जोड़ना है। जैसे कि चरखा, वैसे जितने भी चित्र है पहला अक्षर च से शुरू होता हो तो उसके साथ जोड़ना है। यहाँ च के नीचे रेखा कीजिए। यहाँ कहीं सारे शब्द लिखे गए हैं, तो च दिखाई देते हैं, उसके नीचे रेखा खींचने हैं। नाच, दूसरा अक्षर च है, उसके नीचे लिटी करो। कचहरी, तो दूसरा अक्षर च है, उसके नीचे रेखा खींचो। चमेली, पहला अक्षर च है, उसके नीचे रेखा खींचो। चतुर, पहला अक्षर च है, रेखा खींचो। चना, पहला अक्षर च है, रेखा खींचो। चरण, पहला अक्षर च है, तो रेखा खींचो। च से अलग वर्ण पर चौकड़ी कीजिए। आगे ही दिखाए वैसे यहाँ भी जितने भी च है उस पे नहीं, या कि जितने च से अलग अक्षर पढ़ते हैं उस पे खींचना है और चौकड़ी करना है। बच्चों यहाँ पढ़ो और लिखो। तो यहाँ च को पूर्ण करना है, डॉट पूर्ण करके लिखना है। चपरासी, उसके नीचे डॉट से पूर्ण करना, चपरासी बनाना। चम्मच, चटाई एंड चरण, तो च को पूर्ण करके शब्द बनाओ। शब्द में से च ढूंढकर उस पर वर्तुल बनाओ। शब्द माथी च शोधी तेना ऊपर वर्तुल बनाओ। चटनी, पहला अक्षर च है तो उस पे वर्तुल किया है। बचना, बीच वाला अक्षर च है तो उस पे वर्तुल करो। नाच, दूसरे वाला अक्षर च है, उस पे वर्तुल करो। चमेली, पहला अक्षर च है तो उस पे वर्तुल करो। बच्चों अब हम हिंदी में वर्णमाला सीख गए हैं, तो आप सबनो खूब खूब आभार। सत केवल साहेब।